Hello students, I welcome you all on my YouTube channel. So as you know that from our last lectures we are studying a topic human eye and colorful world. Okay, or I say that we are studying a chapter human eye and colorful world. So in this chapter we already studied all these three topics: introduction to human eye, accommodation of eye, and defects of vision and their correction. Okay, so now in this lecture we will see some numerical problems from topic 3. Okay, so before going to solve some numerical problems on this topic, let's first revise a topic: how we calculate the power of concave lens and a convex lens to correct the eye defects. Okay, so let's first see the calculation of power of concave lens to correct myopia. Okay, so this is the arrangement we know. Okay, so we discussed this arrangement in our last lecture. So to correct the defect of myopia we use a concave lens. So this is a concave lens. So what this concave lens do, it forms a virtual image. Okay, it forms a virtual image of a object when a object is situated at a infinity. Okay, and it forms a virtual image at a point f. Now what is a point f? Point f is a far point of a myopic eye. Okay, point f is a far point of a myopic eye. So from this information we write the value of u and v. Okay, and then we put the value of u and v in a lens formula. Okay, so here you can see that the value of u is infinity. Why infinity? Because our object is situated at a infinity. Okay, so we put the value of u is equal to minus infinity. Okay, minus why? Because of our sign convention. Okay, now let's see that image is forming at the point f, and the point f is a far point of a myopic eye. Let the far point of a myopic eye is d. Okay, so d is a distance from a eye, okay, where the image is forming. Okay, this f point. So we put the value of v is equal to minus d. Okay, so now we have the value of u and the value of v. Okay, now then we put this value of u and v in a lens formula. So put the value of u is equal to minus infinity and put the value of v is equal to minus d. So by this we will get this 1 upon f is equal to minus 1 upon d. So from here we will get the focal length of a concave lens, and focal length we get minus d. Okay, now if you calculate the focal length in centimeter, then use a formula 100 divided by f in centimeter. Okay, क्या होगा फॉर्मूला हमारा पावर का 100 divided by f in centimeter. Okay, so by this we will get the power of concave lens, and this power comes out to be minus 1 upon small d diopter. Okay, so this is a way to calculate the power of a concave lens, okay, to correct the myopia defect. Now let's see for hypermetropia. So you can see here, this is an arrangement to correct the defect of hypermetropia. So we know that what happens in a hypermetropia. In hypermetropia, near point shifted, and near point is more than the 25 centimeter for the hypermetropic eye. Okay, so in this arrangement what happens, our object is at the point n, and what is a point n? Point n is a near point of a normal eye. So our object is at the point n, so we put the value of u is equal to minus 25 centimeter. Okay, n क्या है? n है near point for a normal eye. तो near point जो होता है वो normal eye का, वो कितना लेते हैं हम? 25 centimeter. So we put the value of u is equal to minus 25 centimeter. So okay, so by this convex lens, virtual image of this object will form at the point n dash. इस कॉन्वेक्स लेंस से क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा एन पर रखा हुआ है, इसकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी एन डैश पर. ठीक है, एंड व्हाट इज अ एन डैश? एन डैश इज अ नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई. सो लेट कंसिडर दैट द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज डी. ओके, कितना है? डी है. तो वैल्यू ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस डी. ओके, so value of v is equal to minus d and value of u is equal to minus 25 centimeter. So put the value of u and v in a lens formula, we will get this. So by solving this value, or you just put the value of d. What is a d? d is a near point of a hypermetropic eye. ये वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी? फोकल लेंथ.
और फोकल लेंथ मिलने के बाद हम क्या कर देंगे, पावर का फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, सो पावर का फॉर्मूला कहता है 1/f डायोप्टर। यहाँ पर अगेन आपको ध्यान रखना है, अगर f की वैल्यू आप सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 100/f डायोप्टर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें ये फॉर्मूले जो है वो अप्लाई करने हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टेक अ प्रॉब्लम। So let's see in this problem, calculate the power of the eye lens of the normal eye when it is focused at its far point infinity and near point 25 centimeter from the eye. Okay, assume the distance of the retina from the eye lens to be 2.5 centimeter. Okay, so इस केस में क्या है हमारे पास जो given है, it is given that first thing we need to calculate the power of a normal eye. तो नॉर्मल आई के केस में जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो जब फार पॉइंट के लिए पावर कैलकुलेट करेंगे तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। सो विल टेक u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। नाउ इट इज गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज 2.5 सेंटीमीटर। ओके, सो द इमेज इज फॉर्मिंग एट द राइट साइड ऑफ अ लेंस। इमेज जो बन रही है वो हमारी कहाँ बनेगी, राइट साइड ऑफ द लेंस बनेगी, रेटिना पर। तो इसलिए जो वैल्यू जो हम लेंगे v की वो किस में लेंगे, पॉजिटिव। तो v इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा प्लस 2.5 सेंटीमीटर, u हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी। तो हम लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो बाय अप्लाइंग द लेंस फार्मूला वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज अ फोकल लेंथ of a eye lens. Okay, this is a focal length of a eye lens when the object is situated at a infinity. Okay, now to calculate the value of power we apply the formula P is equal to 100 divided by f centimeter. फोकल लेंथ किस में हमारी, सेंटीमीटर में। तो ये वैल्यू रख दी हमने 2.5, फॉर्मूला अप्लाई करें तो पावर कितनी आ जाएगी, 40 डायोप्टर। तो नॉर्मल आई के केस में अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर है, ठीक है, डिस्टेंट पोजीशन पर है, तो जो लेंस की पावर होगी वो कितनी होगी, 40 डायोप्टर होगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो है वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, नियर पॉइंट पे। सो वी नो दैट द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। सो द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमारा कहाँ है, लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, लेंस के लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड क्या लेते हैं हम, नेगेटिव। ठीक है, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 25 सेंटीमीटर। नाउ अगेन वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना इज 2.5 सेंटीमीटर। और इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना पर बन रही है, तो वो वैल्यू क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। ठीक है, नाउ अप्लाई द लेंस फॉर्मूला। सो व्हेन यू अप्लाई अ लेंस फॉर्मूला यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 25/11 सेंटीमीटर। Okay, so this is a value of focal length. Okay, now to calculate a power apply a formula 100 divided by f centimeter. So by applying this formula you will get 44 diopter. So 44 diopter is the power of a eye lens when a object is situated at a near point of a normal eye. Normal eye का जो near point है, अगर वहाँ पर object है तो उस केस में जो आई लेंस है उसकी जो पावर होती है कितनी होती है, 44 डायोप्टर। ओके, सो this is a method to solve a problem, to solve this problem. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा किस तरह से सॉल्व करना है। सो टू सी ईच प्रॉब्लम में आप प्रोसीजर को समझें। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हमारी। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, अ मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन 1 मीटर। तो कोई पर्सन है जो 1 मीटर से पास नहीं देख पा रहा। अब इसमें आपको सिंपली ये बात समझ में आ रही है कि जो डिफेक्ट है वो कौन सा ही है, हाइपरमेट्रोपी। क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल आई है उसका जो नियर पॉइंट है वो कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। पर ये जो पर्सन है इनका नियर पॉइंट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो इनके आई है उसमें डिफेक्ट है, और डिफेक्ट कौन सा, हाइपरमेट्रोपी। ओके, नाउ व्हाट इज़ द पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस ही शुड यूज़। तो हमें बताना है कि जो लेंस इनको यूज़ करना है उसकी पावर क्या हो। ठीक है, तो इस केस में अगेन मैंने आपसे कहा कि जो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का, ये जो इनके आई है उसमें कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया। तो नियर पॉइंट जो है हाइपरमेट्रोपिक आई का वो कितना है, 1 मीटर है। ओके, सो हमारे साइन कन्वेंशन से कितना लिखेंगे हम, -1 मीटर। ओके, नाउ कन्वर्ट दिस मीटर इनटू सेंटीमीटर, यू विल गेट -100 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ही है। नाउ अप्लाई अ लेंस फार्मूला। सो व्हेन यू अप्लाई अ लेंस फार्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो अभी एक्सप्लेन किया है आपको, जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड होगा, एट द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई। ठीक है, तो नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई कितना है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर।
और हमारे साइन कन्वेंशन से उसकी वैल्यू कितनी आएगी -25। ओके, वैल्यू ऑफ वी, वी क्या है, नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई। तो हमारे केस में जो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक आई का वो कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर। तो पुट दीज वैल्यूज, ओके, देन सॉल्व, यू विल गेट द फोकल लेंथ 100/3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास फोकल लेंथ आ गई 100/3 सेंटीमीटर। देन अप्लाई अ फॉर्मूला फॉर पावर। तो पावर जो होती है हमारे पास क्या होता है 100 डिवाइड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें आप तो पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास +3 डायोप्टर। ओके, सो दिस इज़ अ मेथड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ अ करेक्टिव लेंस। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्लस का साइन आ रहा है, तो जो लेंस हम यूज़ कर रहे हो लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, तो प्रोसीजर आपको देखना है, क्योंकि एक बार अगर आप प्रोसीजर सीख गए और जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना अगर आप सीख गए, तो ऐसी कितनी भी प्रॉब्लम्स हो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो दिस इज अ नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें दिया हुआ है द फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो इसमें तो खुद ने गिवन ही दे दिया है कि भाई जो पर्सन है वो किससे सफरिंग है, मायोपिया से सफरिंग है, और उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी ना होकर कितना है 2 मीटर्स है। तो फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ करेक्टिव लेंस दैट विल करेक्ट हिज विजन। तो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, क्लियर है, क्वेश्चन में गिवन है। ऑब्जेक्ट यू की वैल्यू कितनी होगी -इन्फिनिटी, और v इज इक्वल टू कितना होगा -2 मीटर। v आप जानते हैं v क्या होता है, v इज अ फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई। तो फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई कितना दिया हुआ है 2 मीटर, कन्वर्टेड इनटू अ सेंटीमीटर, यू विल गेट 200 सेंटीमीटर माइनस। नाउ पुट द वैल्यूज इन द लेंस फॉर्मूला। Okay, now when you put the values in a lens formula you will get the focal length -200 centimeter or -2 meter. Okay, so this is a focal length of this corrective lens. Okay, now calculate the power. So power is equal to 100 divided by f centimeter. Okay, so put the value here. Okay, so you will get -0.5 diopter. So negative is coming, so because of negative it is a concave lens. कौन सा लेंस होगा ये, concave lens, क्योंकि जो पावर है किस में आ रही है, नेगेटिव में। Okay, now let's move to our next problem. So this is a next problem. The near point of an elderly person is 50 centimeter from the eye. Find the focal length and power of the corrective lens that will correct his vision. तो near point से related है, तो near point मतलब हाइपरमेट्रोपिया हुआ, और elderly person है तो ये प्रेसबायोपिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रेसबायोपिया बोलते हैं। और प्रेसबायोपिया को जो करेक्ट करने का मेथड है वो वही मेथड है जो कि हाइपरमेट्रोपिया का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो u है वो तो कितना हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। u क्या होता है, यहाँ पर दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ, u क्या होता है, नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई। तो नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और साइन कन्वेंशन से हमारे पास u इज इक्वल टू कितना आएगा -25 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन में किसी को प्रॉब्लम है तो ये ध्यान रखें, लेंस के राइट साइड जो भी वैल्यूज़ हैं मेज़र करोगे वो सब पॉजिटिव, और लेंस के लेफ्ट साइड जो भी वैल्यूज़ आप मेज़र करोगे लेंस से वो सारी क्या आती हैं, नेगेटिव होती हैं। ठीक है, आगे v इज इक्वल टू क्या है -50 सेंटीमीटर। v क्या होता है इस केस में, v क्या दिया हुआ है हमको, v इज अ नियर पॉइंट। ओके, v इज अ नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई। तो नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई कितना है 50 सेंटीमीटर। तो साइन कन्वेंशन से वो -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे बहुत ईजी है, आप लेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ओके, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू आएगी फोकल लेंथ की वो कितनी मिलेगी 50 सेंटीमीटर। सो दिस इज अ फोकल लेंथ फॉर अ करेक्टिव लेंस। ओके, now calculate a power. So power is equal to 100 divided by f in centimeter. Okay, so solve this, you will get +2 diopter. Now you get a value +2 diopter, so plus represent that the lens is a convex lens. जो लेंस यूज करा है आपने करेक्टिव लेंस वो कौन सा लेंस है, convex lens. Okay, so students use these for all these problems as a sample problems. Okay, and learn a procedure. Learn a procedure that how you attempt a problem of these kinds. So whenever these kinds of problems will come, you should be able to identify that this is a myopia or hypermetropia or presbyopia. Then according to that you will apply the formula. Okay, so I hope आपको समझ में आया होगा और आप अब इस तरह की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।